In the closing moments of this youth camp, dear brothers and sisters, our hearts are still focused towards the younger generation, the young people who gathered together with us in the youth camp. और इस यूथ कैंप में इस अंतिम समय में भी हमारा जो ध्यान है, जो जवान लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनके ऊपर हमारा मन लगा हुआ है. So most of the things that we are going to share in this time of message would be again to answer some of the burning questions in the hearts of the young people. और इस अंतिम इस संदेश में भी यहाँ पर जो जवान लोग इकट्ठा हुए हैं और उनके मन में जो मतलब जलने वाले के जैसे एक सवाल जैसे हैं, उन सवालों के एक उत्तर हम देना चाहेंगे. And the others, the parents and the adults who are present with us this morning, may bear with us if you feel some of the things that we say are not relevant to you. हो सकता है कि यहाँ पर जो बड़े लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो बातें हम यहाँ पर बोलेंगे, हो सकता है कि ये बातें आपको लागू ना हो. Because we are still very much with the young people. क्योंकि हम अभी भी जवानों के साथ हम जुड़े हुए हैं. Dear brothers and sisters, we have been looking at Psalm 40 and looking at the theme verse and then the other verses that are in the book of Psalm 40, and to see the Lord Jesus Christ and the description about this eternal Son of God. और यहाँ पर प्रियो, यहाँ पर जो वचन का शीर्षक हमें दिया गया है भजन संहिता उसका 40 और जो दूसरे वचन हम देख रहे हैं, इन सभी वचनों में हम प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके वर्णन को या फिर उसके जीवन को हम देख रहे हैं. The word of God is so wonderful, so precious, and it is so great. और परमेश्वर का जो वचन है ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही बहुमूल्य है और ये बहुत ही महान भी है. The present day youth, young generation, they pursue after knowledge. और इस पीढ़ी के जो जवान लोग हैं, वो लोग ज्ञान के पीछे वो लोग पड़े हुए हैं. Some of you have read many books. आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत से किताबें आपने पढ़े होंगे. And you have passed many an exam. और बहुत सी परीक्षाएं, एग्जाम्स आपने पास किए होंगे. How many books you would have studied? कितने ऐसे किताबें होंगे जो आपने पढ़े होंगे. As an undergraduate or as a postgraduate student, how many things you would have done? और अंडर ग्रेजुएट होने के नाते, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के नाते कितने ऐसे काम आपने किए होंगे. Some areas of science that you have almost gone to the highest level possible. और विज्ञान के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर आप बहुत ही ऊंचे स्थान में चले गए हैं. And some are still on their way to that point. और कुछ आप में से कुछ ऐसे हैं जो इस मार्ग में है, वहां तक आप पहुंचना चाहते हैं. Some are still going to school. और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल जा रहे हैं. Whatever the case may be, you are very much informed of all the knowledge that this world, the people have been able to, humans have been able to gather and to discover. और अब चाहे कैसी भी दशा में क्यों ना हो, लेकिन संसार में मनुष्य ने जो कुछ ज्ञान उसने बटोरा है, ये सब ज्ञान आज आपके लिए उपलब्ध है, आप जानते हैं. Psalm 119 and verse 96 says, भजन 119 और उसका 96 कहता है. I'm trying to make a comparison here. और यहाँ पर मैं यहाँ पर तुलना कर रहा हूँ. A comparison between all the knowledge that the world can offer to us and the knowledge that the word of God can offer to us. और सारा ज्ञान जो संसार हमें दे सकता है वो एक तरफ है, और सारा ज्ञान जो परमेश्वर का वचन हमें दे सकता है वो एक तरफ है. Psalm 119 and verse 96. भजन 119 और उसका 96. I have seen an end of all perfection, but thy commandment is exceeding broad. जितनी बातें पूरी जान पड़ती है उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है.
The idea here is the person who is speaking is a very learned, educated man. और यहाँ पर विचार ये है, जो वचन जिसने यहाँ पर लिखा है, ये जो मनुष्य है, ये बहुत ही पढ़ा लिखा और ज्ञानी मनुष्य है, Man of the category of King Solomon, और राजा सुलेमान के मतलब वो समानता का ये मनुष्य है, who had a very keen intellect and have examined every aspect of human life, plant life and the knowledge of the world. और ये वो मनुष्य है जो मतलब मनुष्य के जीवन के हर एक बातों को उसने जांचा है, और पेड़ पौधों का जो जानकारी उसको भी उसने जाना है, ये सब जानकर उसने लिखा है। After such a keen observation, he says like this, और इस रीति से पूरा ध्यान से विश्लेषण करने के बाद ऐसा वो कहता है, I have seen an end of all perfection. और सब परिपूर्णता का अंत मैंने देखा है। That is one of the meanings of that sentence. और इस वचन का ये एक अर्थ है, A man who had explored the universe around him. और ये मनुष्य है जो उसके चारों तरफ जो संसार उसको पूरा उसने छानबीन कर लिया Have been है, able to understand many things. और बहुत सी बातों को उसने समझ भी लिया है, Laws of physics बहुत सा वो फिजिक्स भी है, and the details of chemistry. और केमिस्ट्री का ज्ञान है, Everything to perfection. और सब कुछ उसने सिद्धता से जान लिया है। But now he is making a comparison with the word of God. लेकिन अब वो परमेश्वर के वचन के साथ उसका तुलना करता है। Yes, but thy commandment is exceeding broad. लेकिन तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है, Broader than all what he has studied. और जो कुछ उसने सीखा उस सबसे ये बहुत बड़ा है, Broader than all what he has come to know. और जो कुछ उसने जान लिया उससे ये बड़ा है, Broader than all the sciences that we ever have come to know. और जो कुछ विज्ञान हमने सीखा उस सबसे ये बड़ा है। This is what we would like to recommend to young people. और हम जवानों को इसका हम पक्ष करते It हैं। is good to further your knowledge. ये अच्छी बात है, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, Good to attain high points of study. और पढ़ाई का ऊंचे स्थान में जाना अच्छा है, But remember, लेकिन आप याद रखिए, the word of God is broader than any one of those. लेकिन इन सब से बढ़कर परमेश्वर का वचन ये बहुत बड़ा है। So please, while you pursue all your advancement of your studies, keep the word of God in your life as in the first place. और जब आप अपने पढ़ाई को आप कर रहे हैं और बड़े पढ़ाइयों में जा रहे हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में प्रथम स्थान, पहला स्थान आप दीजिए। It can make you wise unto salvation. और ये आपको उद्धार के लिए ये बुद्धिमान बनाएगा। It can give you a place in the great company of God's people. और ये आपको परमेश्वर के लोगों में, बड़े समाज में आपको ये स्थान देगा, It can give you an inheritance. और आपको ये मिरास देगा, Inheritance that will not fade away. ऐसा मिरास जो नाश होने वाला नहीं है। It is your eternal hope. ये आपकी अनंत आशा है। The word of God will do things in your heart and in your life that will go beyond this life into eternity. और प्रभु अपने वचन के द्वारा आपके हृदय में, आपके जीवन में जो काम करेगा, वो काम इस संसार में लेकिन अनंत काल तक वो चला जाएगा। That is what we begin to see as we read any part of the scriptures. और यही बात हम वचन को जब हम पढ़ते हैं, उस बात को हम देखते How हैं, deep the word of God is. प्रभु का वचन कितना गहरा है, How high the word of God is. प्रभु का वचन कितना ऊंचा है, How broad the word of God is. प्रभु का वचन कितना विस्तार है। So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और प्रिय बहन, keep on reading the scriptures. प्रभु का वचन आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। Keep on meditating on the scriptures. प्रभु के वचन पर आप ध्यान करते रहिए, Keep on hearing the voice of God. प्रभु की आवाज को आप सुनते रहिए। Your word, your commandment is so broad, Te- exceedingly broad. तेरा वचन, तेरी आज्ञा कितने बड़े हैं, बहुत ही विस्तार है। If you want further study on the excellency of the word of God, परमेश्वर के वचन के ऊपर यदि आप और अधिक ज्ञान चाहते हैं, do a good study of Psalm 119, 119. और भजन 119 का आप बहुत ही अच्छा एक मनन कीजिए। How wonderful that book, that particular psalm. और ये भजन कितना अद्भुत है। The word of God is presented to us as something that can completely revolutionize our life. और परमेश्वर का वचन इस रीति से वो प्रस्तुत किया गया है ताकि ये जो वचन है संपूर्ण रीति से हमारे जीवन में एक क्रांति को लेकर The आता है। law of the Lord.
ये परमेश्वर का व्यवस्था है the statutes of the law, और परमेश्वर की जो विधि है, the precepts of the law, परमेश्वर के जो नियम है, the judgments of the law, परमेश्वर का जो न्याय है, the word of the law. परमेश्वर का जो वचन It है, is presented in different ways. और ये अलग अलग रीतियों में प्रस्तुत किया गया है। In Psalm 119. भजन 119 में। So please read Psalm, the whole Psalm, and understand the greatness and the excellency of the word of God. और इस भजन 119 को आप पढ़िए और परमेश्वर के वचन का जो महत्व है उसको आप यहाँ पर समझिए। Psalm 40 and verse 4. भजन 40 और उसका 4 वचन। Blessed is that man that maketh the Lord his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानी और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Our gracious loving heavenly Father, हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, Lord, the remaining few minutes as we meditate on thy word, now Lord, turning to man from that, Lord, wonderful revelation of thy Son, the Lord Jesus, now we turn to ourselves and look at ourselves at the Lord in the light of this scripture. प्रभु जी थोड़ा समय जब हम आपके वचन की ओर हम ध्यान कर रहे हैं, उस मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह है उसको हम देख रहे हैं और उसी समय हम अपने आप को भी प्रभु जी यहाँ पर देख रहे हैं। Help us, O Lord, that we may become that blessed person. प्रभु जी आप हमारी सहायता करें ताकि हम वो धन्य मनुष्य हम बन Teach जाए। us thy word. आपका वचन आप हमें सिखाइए। We thank thee for all the truths that have been already revealed, established in our hearts from this theme verse during this day and in the days that we spent here. प्रभु जी जो वचन की सच्चाइयों को प्रभु आपके वचन के द्वारा आप हमारे हृदयों में प्रभु जी इन दिनों में प्रकट किया गया, आज के दिन और बीते दिनों में प्रभु जी आप उसको फिर से आप उसको प्रभु जी रिवाइव कीजिए। We thank thee for all the messengers, प्रभु जी सभी आपके दासों के लिए हम आपको the धन्यवाद देते teachers हैं, of the word, वचन के शिक्षकों के लिए धन्यवाद देते and the हैं, precious thoughts that have come into our hearts. जो बहुमूल्य विचार हमारे हृदयों में आए हैं, धन्यवाद देते Now, हैं। Lord, help us once again. प्रभु जी फिर से एक बार आप हमारी सहायता करें। Lord, that our hearts may be, Lord, towards this blessedness that we should have. प्रभु जी इस धन्यता की ओर हमारा मन आकर्षित हो सके जो यहाँ पर है। Accept our thanksgiving. हमारे धन्यवाद को आप ग्रहण In the करें। name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Yes, we have been looking at the person, the character, and the ministry of the Lord Jesus Christ from that theme verse, through that theme verse. और यहाँ पर जो शीर्षक वचन का भाग हमें दिया गया है, इस शीर्षक वचन में उस पुरुष प्रभु यीशु मसीह उसका चरित्र और उसकी सेवा को हम देख रहे And the हैं। whole psalm is so relevant, every part speaking to us, revealing to us the Son of God. और ये जो पूरे भजन में हम देखते हैं कि किस रीति से मतलब ये लागू होता है और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ये प्रकट कर रहा है। Who has done this? ये किसने किया है? It is not man's work. ये मनुष्य का काम नहीं है, It is the Spirit of God. ये परमेश्वर का आत्मा है। What we are trying to do is to read and to understand. What we understand, we share. और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और जो हम समझते हैं वो हम दूसरों को बताते But हैं। the work belongs to the Holy Spirit of God. लेकिन ये जो काम करना है ये पवित्र आत्मा का कार्य है। Now we turn from the Lord Jesus Christ and that revelation to man, to see what God is telling about the blessed man. और हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और उसका जो कार्य उसको हम देख रहे हैं और उस मनुष्य को हम देख रहे हैं। यहाँ पर प्रभु उस मनुष्य से क्या कह रहा We है? are confining ourselves to only the theme verse. अब यहाँ पर हम सिर्फ शीर्षक वचन की ओर हम बने रहने वाले हैं। Blessed is that man or that woman धन्य है वो मनुष्य और धन्य है वो स्त्री that maketh the Lord his trust. जो प्रभु को अपना आधार बना लिया है। Now this morning, if you were listening keenly, you would have realized some of the meanings as the verse was divided into parts and it was explained. और जब आप इस वचन को सुन रहे हैं
तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे ये वचन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। Now today you must come to this blessedness और इस आज के दिन आपको इस धन्यता में, आशीष में आपको आना है, to make the Lord your trust. ताकि आप परमेश्वर का अपना भरोसा बना ले। So I am trying to just add a little bit more and another aspect. और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ, और एक पहलू मैं बताना चाहता हूँ। This is more than trusting in the Lord. और ये प्रभु के ऊपर भरोसा करने से थोड़ा और बेहतर है। This is making the Lord your trust. यहाँ पर परमेश्वर को ही अपना भरोसा बना लेना है। This expression is not found anywhere else. और ये जो बात है ये कई दूसरे भाषा ट्रांसलेशंस में नहीं है। This is very special. ये बहुत विशेष है। This is making the Lord your trust. परमेश्वर को ही अपना भरोसा बना लेना है। It is complete dependence on the Lord. और ये संपूर्ण रीति से प्रभु के ऊपर हम निर्भर होना दिखाता है। Not only your thoughts, सिर्फ विचार ही नहीं है, your whole life. आपका संपूर्ण जीवन। There is a passage still by David himself. He has written down 2 verses that will come somewhat closer to this thought. और दो ऐसे वचन हैं जो दाऊद ने ही लिखे हैं, जो इस वचन के नजदीक आते हैं, But it does not explain it fully. और संपूर्ण रीति से वो उसका विश्लेषण नहीं करता है। That is the 18th Psalm. वो भजन 18 है। 18th Psalm भजन 18 we have in verse 2 to verse, or maybe verse 2 would be enough. दूसरा वचन 18:2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। Now David the psalmist is trying to explain there what he meant by Psalm 40 and verse 4. और यहाँ पर दाऊद इस बात को बताना चाहता है कि भजन 40 का 4 में वो मतलब वो क्या कहना चाहता है। What it means to make the Lord your trust. प्रभु को अपना आधार बनाने का अर्थ क्या है। So all the things that he is mentioning in verse 2 here, और यहाँ पर प्रभु को अपना भरोसा बनाने के विषय में यहाँ पर 2 वचन में पूरा लिखा it हुआ has है, become his experience. और ये उसका अनुभव हो गया है। But it is more than that. और ये इससे बढ़कर भी है। Making the Lord trust is more than that. प्रभु को अपना भरोसा बनाना ये इससे भी बहुत बड़ा है। That is the place where you rest, और ये वो स्थान है जहाँ पर आप विश्राम करते हैं, where you live, यहाँ पर आप जीते हैं, where you move, और यहाँ पर आप चलते फिरते हैं, where you have your being. और यहाँ पर आपका अस्तित्व है। The Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह, In a sentence, if we say this, यदि एक लाइन में यदि हम कहना चाहे, to come under the sovereignty of God, और परमेश्वर की सार्वभौमता के नीचे आ जाना है, completely surrender yourself under the sovereignty of God. परमेश्वर की सार्वभौमता के नीचे संपूर्ण रीति से आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए। That's what it is. ये उसका अर्थ है। This is the challenge for you, young people, today, as you go out of this place, to bring your life completely under the sovereignty of God. और ये जवान लोगों के लिए एक चुनौती है, जब आप इस युवा शिविर से यहाँ से जाने वाले हैं, आप अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु परमेश्वर के सार्वभौमता के नीचे आपको लेकर आना है। That means no more doubts. इसका अर्थ ये है कि अब आपके जीवन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, Even no more questions asked. और कोई प्रश्न आपके जीवन में अब नहीं आना चाहिए। Whatever God says is right. जो कुछ परमेश्वर कहता है वो सही है। If any person asks you a question, यदि कोई मनुष्य आपसे प्रश्न पूछे, the answer should be, आपका उत्तर ये होना चाहिए, what does the Bible say? बाइबल क्या कहता है, That is the answer. वही उत्तर है। God is my trust.
प्रभु मेरा भरोसा है My life is in Him. और मेरा जीवन उसमें है। I am under His sovereignty. मैं उसकी सार्वभौमता के नीचे हूँ He decides everything. और वो सब मेरे लिए सब कुछ वो निर्णय करता है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई प्रिय बहन, young and old, we all should come to this place. बड़े हो छोटे हो हम सब इस स्थान में आना है That is the blessed place. और ये एक धन्य स्थान है। Lord, I accept and surrender myself under your sovereignty. प्रभु जी, मैं अपने आप को उस आपके सार्वभौमता के नीचे समर्पण करता हूँ और आपकी सार्वभौमता को मैं ग्रहण करता हूँ। Dear brothers and sisters, while we acquire so much of knowledge, even Bible knowledge, we need to understand something of the greatness of God. प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का जो ज्ञान है उसके विषय में बहुत ज्ञान हम ग्रहण करने के बाद में भी हम परमेश्वर के विषय में कुछ बातें हमें सीखना है। Paul the apostle is making a declaration twice as he was writing to Timothy in the first book of Timothy regarding this. और पौलुस तीमुथियुस की पहली पत्री को लिखते समय दो बार इस बात को वो मतलब बार बार वो बताता है। First book of Timothy chapter 1. पहला तीमुथियुस, First book of Timothy and chapter 1 and verse 17. पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 17 वचन। This is his description of God. और परमेश्वर के विषय में इस रीति से वो वर्णन करता है। Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। He is the only wise God. वो इकलौता मतलब ज्ञानी परमेश्वर है। Our own wisdom can be called foolish wisdom. और हमारा जो ज्ञान है इसको मूर्ख ज्ञान हम कह सकते हैं। We must bring all our brainy wisdom and knowledge under the only wise God. और हमारा जो ज्ञान, हमारा जो बुद्धि जो हमारे अंदर है इसको उस एकमात्र ज्ञानी परमेश्वर की अधीनता में लाना है। Look at these words. इन शब्दों को आप देखिए। He is King eternal. वो अनंत राजा है He is King immortal. और अविनाशी राजा He is है, King invisible. अनदेखा राजा है, He is the only wise God. एकमात्र परमेश्वर है। Proclaim this truth. इस सच्चाई को आप प्रकट कीजिए, Believe this truth. इस सच्चाई पर आप विश्वास कीजिए। Do not think that you can understand or you are expected to explain every truth that is about God. और इस बात को आप समझिए कि परमेश्वर के विषय में जो हर एक सच्चाई है वो आपको प्रकट करना है। Then 1 Timothy chapter 6. पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय। We have another at the end of the book of that letter. और इस पत्री के अंत में एक बात है। Chapter 6 verse 15. 6 अध्याय का 15 वचन। Which in his time he shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings, the Lord of lords. जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Only potentate. और वो सर्व सामर्थी है। 2 other words are given as explanation. और समझाने के लिए 2 बातें दिए गए हैं। Potentate means the sovereign और सर्व सामर्थी है, or the ruler, मतलब या प्रभुता करने वाला, the only ruler. अकेला राज्य करने वाला, He is God. वो परमेश्वर है। We are preaching this God. और इस परमेश्वर का हम प्रचार कर रहे We हैं are believing in Him. और इस पर हम विश्वास कर रहे We हैं। are not believing in a small God. और छोटे परमेश्वर में हमारा विश्वास नहीं है। He decides everything. और वो सब का निर्णय करता है, He begins everything. वो सब कुछ आरंभ करता है, He plans everything. वो सब कुछ वो योजना बनाता He है, executes everything. सब कुछ वो चलाता भी है। He will not consult you. और वो आपसे सलाह मशवरा नहीं करेगा He doesn't have to ask permission from you. और आपसे वो अनुमति नहीं मांगेगा। Neither has He got to give you an explanation. और उसका विश्लेषण भी वो क्यों कर रहा है वो नहीं बताएगा। He is God alone. वो अकेला परमेश्वर है, He is only wise God. वो अकेला ज्ञानी परमेश्वर है। Please read further. आगे पढ़ेंगे In verse 16. 16 वचन। Who only hath immortality
dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power be everlasting. Amen. और अमरता केवल उसी की है, और वो अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग रहेगा। आमीन। This is worship. ये आराधना है। Paul is worshiping God, पौल उस प्रभु की आराधना कर रहा है, talking about the worship of God, और परमेश्वर के कामों को वो बता रहा है, as to who He is. और वो कौन है ये बता रहा है। The Bible speaks to us of the knowledge of the holy. और बाइबल हमें वो परम प्रधान के उसके ज्ञान के बारे में बताता है। Our knowledge of the holy is so little. उस पवित्र के विषय में जो ज्ञान है हमारा बहुत अल्प है। We must know the God of the Bible अब बाइबल के इस परमेश्वर को हमें जानना है, and fall at His feet. और उसके चरणों में हमें गिर जाना है। The only wise God, वो अकेला ज्ञानी परमेश्वर है, ruler, वो the sovereign, और सार्वभौम, वो प्रभुता करने वाला है। who only hath immortality, अमरता केवल उसी की है, dwelling in the light which no man can approach unto. और ऐसे अगम्य ज्योति में वास करता है जहाँ कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता है। These are mysterious things. और ये बहुत ही भेद की ये बातें हैं। We are saying many things because of our ignorance about God and about going to heaven. और हम अपनी अज्ञानता के कारण परमेश्वर के विषय में बहुत सी बातें बोलते हैं, और स्वर्ग के बारे में जानने के विषय में बहुत सी बातें बोलते हैं। Some of us say, when I go to heaven, I will ask all the questions from God. और हम अपनी अज्ञानता में कई बार बोलते हैं मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो सब प्रश्न मैं प्रभु से पूछूंगा। I don't think that you will do that when you are in heaven. मुझे ऐसा नहीं लगता जब आप स्वर्ग में रहेंगे तो ऐसा आप करेंगे। There will be mysteries that is known to us in time or in eternity. और ऐसे मर्म है जो मतलब उस समय हमें पता चलेंगे, But we only worship Him. लेकिन हम सिर्फ उसकी आराधना करेंगे। Now we need answers. लेकिन अब हमें सवालों के जवाब चाहिए। But in heaven we don't need answers. लेकिन स्वर्ग में हमको कोई उत्तर नहीं चाहिए। That is the difference. यही अंतर है। Not that we have received all the answers. इसका अर्थ ये नहीं कि वहां पर हमको सब उत्तर मिल गए हैं, This is what's going to happen. लेकिन ये वहां पर होने वाला है। In heaven we will not need any of the answers. स्वर्ग में हमको कोई उत्तर नहीं चाहिए। Even if an angel comes to us यदि कोई स्वर्गदूत हमारे पास आएगा and calls out our name, और हमारा नाम बुलाएगा, come here, you had many questions. इधर आओ, इधर आओ, आपके पास बहुत प्रश्न थे, I will take you to the Lord. मैं आपको प्रभु के पास ले You जाऊंगा, ask your question. आप अपना प्रश्न पूछिए। We will say, no sir, thank you, I don't need. और हम बोलेंगे सर थैंक यू, धन्यवाद, कोई जरूरत नहीं है, I do not need any answers. और अब मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए, I only need to worship God. अब मुझे सिर्फ प्रभु की आराधना करना We है। will tell the angel, हम स्वर्गदूत से कहेंगे please excuse me sir, go away, don't disturb me. कृपा करके आप मुझे छोड़ दीजिए, आप परेशान ना करें, I am worshipping मैं आराधना कर रहा the हूँ। only wise God. एकला होता ज्ञानी परमेश्वर, This is my eternal occupation. और ये अब अनंत काल के लिए अब ये मेरा काम है। Today we are full of questions. आज हम पूरी रीति से प्रश्नों से भरे हुए हैं, Now we know that in any youth camp we have question and answer time. और हम हर युवाओं के शिविर में प्रश्नोत्तर का समय रहता है, We come up with very strange questions. और हम बहुत ही विचित्र प्रश्नों को लेकर आते We हैं। are very good at asking questions. हम प्रश्न पूछने में हम बहुत होशियार है, Many questions are about the sovereignty of God. और बहुत से जो प्रश्न है वो परमेश्वर की सार्वभौमता के विषय में रहते हैं, Election of God. परमेश्वर के चुनाव के विषय में रहता है, Predestination by God. और परमेश्वर का जो पहले से ठहराए हुए जो है उसके विषय में पूछते हैं। We have why and explain to me, that is the human mind. और हाँ, हम प्रश्न पूछते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों, ये मनुष्य का ये बुद्धि It है। is not a bad thing to ask the questions. प्रश्न पूछना कोई गलत बात नहीं है, But what I am trying to say is लेकिन मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, that God is not bound to answer all our questions. परमेश्वर हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मतलब वो ऐसा जिम्मेदारी नहीं है But उसकी, God wants us to completely surrender ourselves before the sovereignty of God. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की सार्वभौमता के सामने हम संपूर्ण रीति से हम अपने आप को समर्पण कर दे। Are you willing to do this? क्या ये काम करने के लिए आप तैयार है? This will give you great freedom.
और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बड़ी स्वतंत्रता मिलेगी great liberty of the Spirit और आत्मा में बड़ा स्वेच्छा आपको मिलेगा to love Him and to serve Him. ताकि आप उससे प्रेम करें और आप उसकी सेवा करें। Otherwise, we will be only asking questions. यदि ऐसा नहीं तो हम सिर्फ प्रश्न पूछने वाले ही रह जाएंगे। Remember, स्मरण करें, our God cannot be changed. हमारा परमेश्वर उसको हम बदल नहीं सकते He हैं। is on the throne. वो सिंहासन के ऊपर है। 3 times in the book of Psalms, भजन संहिता में 3 बार we find 3 Psalms beginning with this particular line, और 3 भजन ऐसे हैं इस रीति से वो आरंभ होते हैं which describe to us the eternal state of God. और यह हमें परमेश्वर का जो अनंत काल का जो स्थान है वो हमें बताता है। The Lord reigneth. परमेश्वर राज कर रहा है, The Lord reigneth. परमेश्वर राज कर रहा है That is the eternal state of God. और ये परमेश्वर का सनातन का ये स्थान है। Psalm 93 verse 1. भजन 93 You have the Lord reigneth. पहला वचन यहोवा राजा है। Psalm 97 verse 1. भजन 97 का पहला वचन The Lord reigneth. यहोवा राजा हुआ है। And Psalm 99 verse 1. भजन 99 का पहला वचन The Lord reigneth. यहोवा राजा हुआ है। This is the eternal state of God. परमेश्वर का ये सनातन का ये स्थान है। So we operate, we live, we serve Him with that knowledge. और हम इस ज्ञान के साथ हम जीते हैं और इस ज्ञान के साथ हम उसकी सेवा करते हैं। Not because we have found answers to all the questions. इसलिए नहीं कि हमारे प्रश्नों के सब उत्तर मिल गए हैं, ऐसा नहीं है। So let us accept this truth. इस सच्चाई को हम ग्रहण करना है। This is the blessed person ये वो धन्य पुरुष है who has made the Lord his trust. और जिसने परमेश्वर को अपना भरोसा बनाया है। What does the Lord say? प्रभु क्या कहता है? If he says it, it's right. यदि वो कहता है तो वो सही है I don't need any other opinion. और दूसरा मुझे कोई सुझाव की जरूरत नहीं I है don't need any other suggestion. और दूसरों का कोई सुझाव मुझे जरूरत नहीं है। That is the place where we should come to. ये वो स्थान है जहाँ पर हमें आना That है। is the blessed position. ये वो धन्य स्थान है। Dear friends, we should preach this God. प्रिय मित्रों, इस परमेश्वर को हमें प्रचार करना He है। is the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह है। Did you see in that description by Paul in 1 Timothy chapter 6, He is King of Kings and the Lord of Lords. और पहला तिमोथी 6 के 16 में हमने देखा पौलुस कहता है वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। Yes, there are many difficult things in the scriptures. और पवित्र शास्त्र में बहुत से ऐसे कठिन बातें भी है We are not happy about them. और उनके विषय में हम खुश नहीं हैं। One particular thing is the election of God. एक बात ऐसा जो परमेश्वर का जो चुनाव है, It would be good if we had time to discuss all that. और यदि समय अच्छा होता कि यदि समय होता तो ये सब हम विस्तार से हम देख सकते थे। God says, I have loved Jacob and I have hated Esau. परमेश्वर ने कहा मैंने याकूब से प्रेम किया है, एसाव से मैंने द्वेष किया है। The Bible says He said that even before they were born. और बाइबल बताता है कि उनका जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने ये बात कहा है। Even before they did anything good or bad. और जबकि उन्होंने जो भला या बुरा करने से पहले ही प्रभु ने ये बात कहा। God is like that. परमेश्वर ऐसा है। It is not only for knowledge of God. ये परमेश्वर का पूर्व ज्ञान की बात नहीं है It is not only for knowledge. और यह सिर्फ पूर्व ज्ञान की बात नहीं है It is His sovereign will. और ये उसका सार्वभौम इच्छा है। So you have been elected. आप चुने गए हैं। The election of God is a mystery. और परमेश्वर का जो चुनाव है ये एक भेद की बात है। But it is mentioned so many places in the scriptures. लेकिन ये पवित्र शास्त्र में बहुत से स्थानों में बताया गया है You must bow down before it. और इसके सामने आपको घुटने टेकने हैं There is no other way. और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। We human beings, we are thinking too highly of ourselves. और हम जो मनुष्य हैं हम अपने विषय में बहुत हम ऊंचा सोचते हैं Because we can think for a little while. क्योंकि हम थोड़े समय के लिए सोच सकते हैं। We have a lifetime of 70, 80 or 90 or 100. और 70, 80, 90, 100 साल का हमारा जीवन है। We think we are great people. हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े लोग हैं। We can solve many mathematical questions. हम सोचते हैं कि गणित के बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे सकते We हैं can explore the universe for a little bit to some extent. और इस ब्रह्मांड का थोड़े स्थान तक हम उसका विश्लेषण कर सकते And हैं we have become proud.
और हम घमंडी हो गए हैं We try to lead a life independent of God. और हम प्रभु को छोड़कर स्वतंत्रता का एक जीवन हम जीना चाहते हैं We try to turn to the proud to get our knowledge. और हम घमंडियों के पास जाकर हम ज्ञान पाना चाहते हैं The respecting of the proud means that और घमंडी का आदर करना मतलब यही है in our theme verse, and respecteth not the proud. और हमारे शीर्षक वचन के भाग में जो घमंडी का आदर नहीं करता है In a easier translation, और सरल भाषाओं के जो ट्रांसलेशंस that में the person who will not turn to the proud for advice. और जो घमंडी के पास जाकर जो सलाह मशवरा नहीं लेता सलाह नहीं लेता है But many of the people from whom we learn are proud people. और हम ज्यादातर जो बातें हम सीखते हैं वो घमंडी लोगों से सीखते हैं Because they do not believe in the eternal God. क्योंकि वो अनंत परमेश्वर पर वो विश्वास नहीं करते हैं All the professors, the teachers and the great people. और प्रोफेसर जो टीचर्स और जो बड़े लोग हैं And the scientists and very many people. और जो साइंटिस्ट लोग और जो दूसरे भी लोग हैं Some of them happen to be people who do not believe in God. और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं Some of them are atheists. और वो लोग नास्तिक है And we try to learn from them. और उनके पास हम सीखना चाहते हैं And things that are true knowledge, they mix up with lies. और जो सच्चा ज्ञान है वो झूठ के साथ वो मिलाते हैं But the person who is blessed लेकिन जो धन्य पुरुष है will not turn to them. वो उनके पास नहीं जाएगा That means will not leave the knowledge of God and accept what they say is the truth. और वो लोग परमेश्वर का ज्ञान छोड़कर ये लोग जो बोल रहे हैं ये सही है उसको वो लोग ग्रहण नहीं करते हैं Please, everything you must accept and learn in the light of the knowledge of God. और जो कुछ आप सीखते हैं परमेश्वर के उस ज्ञान के प्रकाश में आपको सीखना है So young people, इसलिए जवान लोग as you go into your school जब आप अपने स्कूल जाएंगे and university आप अपने यूनिवर्सिटी में जाएंगे and places of higher learning, और बड़ी पढ़ाइयों में जो स्थानों में आप जाएंगे please remember the knowledge of God is the key factor in your life. परमेश्वर का जो ज्ञान है वो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है God is looking at mankind परमेश्वर मनुष्यों की ओर देख रहा है and we can see how God will see us. और हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे देखता है I'm trying to some way trying to do an impossible thing today. और आज के दिन मैं असंभव काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ To think about, tell you about the sovereignty of God. और आपको परमेश्वर की जो सार्वभौमता है उसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ Greatness of God. परमेश्वर की जो महानता है How big and great He is. और वो कितना महान कितना बड़ा है I'm not sure whether we went to that verse during the last youth camp. और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूथ कैंप में बीते दिनों में हम उस वचन के पास गए हैं Look at how big we are. देखिए हम कितने बड़े हैं All of us put together. हम सब मिलाकर All of us have knowledge of different things. हम सब के पास अलग अलग बातों का ज्ञान है But look at all of us. लेकिन हम सब की तरफ आप देखिए How big we are. हम कितने बड़े हैं Isaiah chapter 40. यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय Isaiah chapter 40 यशायाह 40 अध्याय and verse 15. और उसका 15 वचन Behold, the nations are as a drop of a bucket. देखो जातियां तो डोल में की एक बूंद के समान है How big कितना- is the nations? जातियां कितने बड़े हैं What do you find there? यहाँ पर क्या लिखा है This is how God sees us. प्रभु हमें ऐसा देखता है The nations are as a drop of a bucket. मतलब बकेट में एक बूंद के समान है When there is only a drop of water in the bucket, मान लीजिए बकेट में एक ही बूंद पानी है what do we say? हम क्या बोलते हैं We say the bucket is empty. बकेट खाली है There is a drop in the bucket. एक बूंद है वहां पर We look at the bucket. हम वहां पर देखते हैं And are we celebrating that? क्या उसको देखकर हम आनंदित होते हैं Do we carry the bucket and dance around saying, oh, there is a drop in the bucket? क्या उस बकेट को लेकर क्या मुछेलकर बोलते हैं कि बकेट में एक बूंद पानी है No. We हम- say bucket is empty. हम बोलते हैं बकेट खाली है It's empty. वो ये खाली है There is nothing. उसमें कुछ भी नहीं है But if you turn the bucket upside down, यदि आप बकेट को उल्टा घुमा देते हैं one drop will come out. एक बूंद आता है God says, परमेश्वर कहता है all the nations taken together, सभी संसार के सभी जातियों को एक साथ लेकर they will be like
the drop in the bucket. वो सब लोग मिलाकर बकेट में एक बूंद के जैसे हैं। How great God must be. परमेश्वर कितना महान होगा, This is what we need to understand. इस बात को हमें समझना है। We must surrender our life to Him completely. हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से उसे हमको समर्पण करना है। This person who sees all the 8 billion people in this world as a drop in the bucket came in the form of a human being. ये परमेश्वर जो संसार के 800 करोड़ लोगों को बकेट के एक बूंद के समान देखता है, वो मनुष्य रूप धारण करके संसार में आया है। So what are you? How big are you? आप कितने बड़े हैं? How big are you? आप कितने बड़े हैं? You divide now that drop of water by 8 billion. अब आप ये बकेट का एक बूंद पानी को 8 करोड़ लोगों में आप बांट दीजिए। That is your size. वो आपका माप है, That is your value. ये आपका कीमत है। But remember, such a small, tiny, in the eyes of great God, He wanted to redeem. और परमेश्वर की दृष्टि में इतना छोटा सा था, लेकिन परमेश्वर उसको छुड़ाना चाहता है। And then look at further, the story is not yet over. अब ये कहानी खत्म नहीं हो, आगे देखिए। Look at in verse 15. 15 वचन, यशायाह 40 का 15। He is like a drop of a bucket and are counted as the small dust of the balance. और यहाँ पर पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। Have you seen the dust of the balance? और ये जो तराजू होता है उसमें Yes. का क्या धूल आपने देखा है? Yes, taradi, right? That's the word. Yes, that is the balancing one, not the electronic one that we use today. इन दिनों में हम इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं, लेकिन पहले वो तराजू होते हैं। On one side you put weight. एक तरफ हम वजन रखते हैं, On the other side you put some items. और दूसरी तरफ जो खरीदते हैं वो चीजें रखते And हैं। you have to balance it. अब उसको तौलना है। Then we know we have got the exact correct weight. तब हम देखते हैं कि हमको सही तराजू सही माप मिला है। But when you are doing some kind of weighing, जब आप ऐसे कुछ तौलते हैं, you are not wiping off the dust. आप उस तराजू को पोंछते नहीं हैं। Why is that? उस धूल को आप पोंछते नहीं, क्यों? We assume dust has no weight. हम सोचते हैं कि उस धूल का क्या वजन है, It is not going to change anything. और वो कुछ बदलने वाला नहीं है। Let a little bit of dust there be there. थोड़ा भी यदि धूल रहा तो It's okay. चल जाएगा। So God says, परमेश्वर कहता है you look like that. आप वैसे दिखते हैं। God says that you look like the small dust, not the big dust. The small dust. पलड़ों पर की धूल के मतलब छोटी सी धूल के समान ठहरे हैं। That is, the dust cannot be seen. ऐसा धूल जो दिखाई भी नहीं देता है। Who are these people? ये लोग कौन है? All the nations. सभी जातियां, Great nations. बड़े बड़े देश है, Like the smallest dust in the balance. और तराजू पर रहने वाले छोटे धूल के समान है। Now we go further. अब हम और आगे जाते हैं। Please let us see the greatness of our God. हमारे परमेश्वर की महानता को हम देखेंगे, And see the greatness of our salvation. और हमारे उद्धार की महानता को हम देखेंगे। Why should God save us? परमेश्वर क्यों हमारा उद्धार करना है? Why should He forgive our sins? वो क्यों हमारे पापों को क्षमा करना है? No reason. आप इस बात को अब सोचिए। We should have gone into hellfire. हमको तो नरक की आग में जाना चाहिए था। Nothing will change. कुछ भी नहीं बदलेगा। But look at this. लेकिन इसको आप देखिए, When as we go down to further description, आगे उस विश्लेषण में जब हम जाते हैं, verse 17, 17 वचन, that is Isaiah 40. यशायाह 40 का 17। All nations before Him are as nothing. सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है। Please now tell, all nations before Him as nothing. Please tell that loud. Nothing. नथिंग, That's what we are. यही हम लोग हैं। Now can you draw the nothing? क्या आप जो कुछ भी नहीं, क्या उसको आपको चित्र बना सकते हैं? We can draw a big zero. एक बड़ा जीरो हम निकाल सकते हैं, That's all. इतना ही है। Can you explain nothing? क्या इस कुछ भी नहीं, इसको क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? But now our heart is crying out. लेकिन अब हमारा हृदय पुकार रहा है। No, I am not nothing. I am something. मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ तो हूँ। Look at all the knowledge. मेरा ज्ञान देखिए। Look at all my physique, my body. मेरे शरीर को आप देखिए। I am so beautiful. मैं कितना सुंदर हूँ, I am so great. मैं कितना बड़ा हूँ। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है you are as nothing. तुम कुछ भी नहीं हो। So you look at nothing. क्या आप अब इस कुछ भी नहीं उसको हम You देखेंगे? see nothing.
आप कुछ भी नहीं दिखता है, You touch nothing. आप कुछ भी नहीं छू रहे You हैं, feel nothing. आपको कुछ भी स्पर्श नहीं हो रहा है, Zero. मतलब ये पूरा शून्य है। So you will say, okay, Lord, I will accept it. आप कहेंगे ठीक है प्रभु मैं इसको ग्रहण करता हूँ, I am nothing only. मैं कुछ भी नहीं हूँ। Then God says, तब प्रभु कहता है no, the story is not yet over. आप ये कहानी इधर अंत नहीं हुआ है, Please look further. और आगे जाइए। Same verse 17. 17 वचन में, All nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing. वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरी है। Now please try to understand less than nothing. अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, शून्य से भी घट गए हैं। God is challenging our knowledge of physics. अब परमेश्वर हमारा जो फिजिक्स का जो ज्ञान है उसको वो परख रहा है, Our knowledge of mathematics. गणित का हमारा जो ज्ञान है उसको प्रभु परख रहा है। He is telling us, okay, you understood nothing. क्या अब आप कुछ भी नहीं इसको आप समझ गए हैं? Now you understand less than nothing. अब आप शून्य से भी कुछ नहीं इसको आप समझिए। I do not know what to say. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि My मैं क्या mind will कहूँ। collapse if I try to think about this less than nothing. अब ये कुछ भी नहीं है, उससे भी नीचे की बात यदि मैं समझूं तो मेरा दिमाग अब गिर जाएगा। To him we are counted as nothing, less than nothing. उसके सामने हम कुछ भी नहीं है और शून्य से भी घट के हैं। How many great things that we are talking about हम कितने ourselves. हम अपने विषय में कितनी बड़ी बड़ी बातें हम सोचते हैं, How foolish we are. हम कितने मूर्ख हैं। When God says you're proud, जब प्रभु कहता है कि तू घमंडी है, how much abominable that must be. और ये कितना ये घृणित ये बात हो सकती है। Yes, dear friend. हाँ मित्रों, We must know the true and the living God, who He is. और सच्चा और जीवता परमेश्वर वो कौन है उसे हमें जानना है, How great He is. और वो कितना महान है। We cannot even begin to understand. और हम उसको समझने के आरंभ भी हम नहीं कर सकते All हैं। the eternal attributes of God. परमेश्वर की जो अनंत काल के जो उसके सद्गुण हैं, All these attributes are shared by the Lord Jesus. और ये सभी सद्गुण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिखाए गए हैं। But He thought that He should save some of these creatures who are called less than nothing. और ये जो कुछ भी नहीं है मतलब शून्य से भी जो घटकर है, उनको प्रभु मतलब छुड़ाने का एक विचार संकल्प उसने किया है। The Lord Jesus becoming less than nothing. और प्रभु यीशु मसीह शून्य से भी घटकर वो बन गया है। David cries out in Psalm 22 saying, I am a worm. और भजन 22 में वहां पर दाऊद कहता है कि मैं तो एक कीड़ा हूँ, Echoing the words of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के वचनों को वो वहां पर बता रहा है। But the actual situation is not even a worm. और वास्तव में यदि हम दशा देखें तो कीड़े से भी कुछ भी नहीं है, Less than nothing. और ये शून्य से भी घटकर है, Less than the smallest dust. और उस धूल के छोटे किनकों के Less समान है, than the drop in the bucket. और बकेट में उस बूंद से भी हम छोटे हैं। So let us go out with that knowledge. और इस ज्ञान के साथ हम बाहर जाना है, This knowledge will help us to serve Him. और ये ज्ञान उसकी सेवा करने के लिए हमारी सहायता See करेगा। how great He is. और वो कितना महान है, And then we know whom we are serving. और तब हमें समझ में आएगा कि हम किसकी सेवा कर रहे This हैं। great and eternal God. और ये महान और अनंत काल का ये परमेश्वर, Now from that position less than nothing, और शून्य से भी जो घटकर हम है उस स्थान से He is lifting us up. अब हमें उठा रहा है, ऊंचा उठा रहा है, He is focusing His love upon us. और हमारे ऊपर उसके प्रेम को उंडेल रहा है। He is now saving us, redeeming us, अब हमारा उद्धार कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, and adorning us, और अब हमें वो अलंकार कर रहा है, making our life beautiful, हमारे जीवन को सुंदर बना रहा है, spiritually beautiful, आत्मिक रीति से वो सुंदर बना रहा है, and preparing us for eternity, और हमें अनंत काल के लिए वो तैयार कर रहा है to reign with Him. ताकि हम उसके साथ राज्य करें। This is unimaginable. ये समझ से बाहर है। From less than nothing शून्य से भी जो घटकर हमें वहां से to the throne of the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन तक, This is where we are going. यही वो स्थान है जहां हम जा रहे हैं। This is why we should love Him. यही कारण है उससे हमको प्रेम करना है, This is why we are not asking questions. और यही कारण हम उससे प्रश्न नहीं पूछते हैं, Because
this transformation is too great. क्योंकि ये जो बदलाव है, ये रूपांतर जो है, ये बहुत बड़ा है। He is taking many sons unto glory, बहुत से पुत्रों को वो महिमा में लेकर जा रहा है, many daughters unto glory. बहुत से बेटियों को महिमा में ले जा रहा है। So let us rest our questions and keep them down. और इसलिए हम अपने प्रश्नों को हम अब शांत कर अब नीचे रख दें। Let us bow down before him. हम उसके सामने घुटने टेके, Let us kneel at his presence हम उसके सामने दंडवत करते हुए घुटने टेके and say, Oh God, thou art everything and I am nothing. हे परमेश्वर, तू ही सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। I surrender myself before the sovereignty of God. परमेश्वर की सार्वभौमता के सामने मैं अपने आप को अर्पण कर देता हूँ। That is the person that is described in Psalm 40 verse 4. यही वो पुरुष है, यही वो पुरुष है जो भजन 40 के 4 में बताया गया है, Who has made God as his trust. जिसने परमेश्वर को अपना भरोसा बना लिया है। Complete surrender. संपूर्ण समर्पण। Are you willing to do that? क्या ये करने के लिए आप तैयार है? Are you able to do that today? क्या आज के दिन ये काम आप कर सकते हैं? Do not allow this foolishness of your mind prevent you doing that. और आपका जो दिमाग का जो मूर्खता है, इस काम को करने से आपको रोकने आप मत दीजिए। Much is said in that theme verse. और उस शीर्षक वचन में बहुत सी बातें बताए गए हैं। He respected not the proud, वो घमंडी का आदर नहीं करता है, and no such as turn aside to lie. और जो झूठ की ओर मुड़ते हैं उनको भी नहीं देखता है। Now we need to understand some of the idioms that are used in the Hebrew language. और हिब्रानी भाषा में जो इडियम्स यूज होते हैं उसको हमें थोड़ा समझना है यहाँ पर। The idea here is false gods. यहाँ पर विचार ये है झूठे परमेश्वर। You can get this if you read maybe an amplified Bible or an easier translation which they have interpreted the idiom. और एम्पलीफाइड बाइबल और दूसरे भाषांतरणों को यदि आप देखते हैं, इन इडियम्स को उन्होंने वहां पर ट्रांसलेट किया है, Which is not always good. ये हमेशा अच्छा नहीं होता है, But in some places लेकिन कुछ जगहों में it is helpful. ये हमारे लिए सहायक है। Here, no such as turn aside to lies. और मतलब यहाँ पर जो झूठ की ओर ना फिरता हो, It is not simply, not only just lying to one another or something like that. मतलब ये सिर्फ एक दूसरे को झूठ बोलने वाली बात नहीं है। It is the idiom used to describe all the useless gods. और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया मतलब व्यर्थ, सभी व्यर्थ देवी देवताएं, False gods. झूठे देवताएं, They are lies. और वो सब झूठ है। Do not turn to them. Do not turn to them. उनके पास आप मत जाइए। Do not turn away from the true and the living God. सच जीवते और सच्चे परमेश्वर से मुड़कर आप मत जाइए। You will say, no, I am only believing in God. आप कहेंगे नहीं, मैं तो केवल परमेश्वर पर I विश्वास do करता not हूँ, worship any idol. मैं कोई मूर्तियों की उपासना पूजा नहीं करता No, no, हूँ, no, I don't even mention their names. मैं उनके नाम तो मुंह पर भी नहीं लेता हूँ। But we find that these false gods, these lies, useless false gods are operating today. और ये जो झूठे देवी देवताएं हैं जो निकम्मे हैं, कुछ काम के नहीं This हैं, is- वो आज हमारे जीवन में काम कर रहे Young हैं। person, this is your challenge. और ये जवान लोगों, ये आपके लिए चुनौती है। In the history of Israel, और इजराइल के इतिहास में there were 3 gods उनके 3 परमेश्वर थे, who were really troubling Israel. और जो सच में इजरायलियों को परेशान कर रहे थे। Every time we find after a few years, they will go back to those gods. और थोड़े सालों के बाद हम देखते हैं फिर वो दूसरे देवताओं के पास जाते हैं, It's terrible even to mention their name. और उनका नाम लेना भी बहुत भयानक But they है। are written in the Bible. लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, Baal, बाल है, Ashtaroth, अश्तरोत, and Molech. मोलेक, These 3 were prominent among many others. और बहुत से देवी देवताएं थे, लेकिन ये 3 बहुत प्रमुख थे। The Canaanite gods ये कनान के देवी देवताएं हैं, and the gods who were round about. और इसके आसपास और भी देवी देवताएं हैं। Now that they are meant here और in this verse, और यहाँ not to turn to those, और इस वचन में बताया गया कि उनके तरफ आपको नहीं जाना है, not to turn to lies, और झूठ की ओर आप मत जाना है, not to turn to false gods. और झूठे देवताओं के पास नहीं जाना है। These 3 gods are operating
fully alive today in the modern society. और ये जो तीन देवता हैं आज वर्तमान इस समाज में, इस दुनिया में, वो अभी भी वो काम कर रहे I हैं। give it to you as homework. मैं आपको एक होमवर्क के रूप में देता हूँ। You write as you read the Old Testament. जब आप जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, You will come to these names. इन नामों को आप पढ़ते हैं। God called Baal बाल देवता, and a goddess called Ashtaroth. अश्तरोत देवी, Another one Molech. और तीसरा मोलेक है। They were terrible. ये बहुत भयानक थे। The altars were erected everywhere, even inside the temple. और ये इनके जो मूर्तियां हैं बाहर ही नहीं लेकिन मंदिर में भी आ गए थे। At one time of the history of Israel, इजराइल के एक इतिहास में these gods came closer and closer. और ये देवताएं नजदीक नजदीक आ गए हैं They became the object of worship. और आराधना का एक प्रतिमा वो बन गए हैं। The lies. और ये झूठ है। So understanding that theme verse is very important. इसलिए शीर्षक वचन को समझना बहुत जरूरी है। And all the lies you see in the world, संसार में जो झूठ, सब झूठ जो आप देखते हैं, any form it may take, और कोई भी रूप चाहे वो क्यों ना ले, in the form of science, और विज्ञान के रूप में, in the form of entertainment, और मनोरंजन के उस रूप में, in the form of fashion, और फैशन के इस रूप में, in whatever it may be, कौन सा भी रूप में चाहे वो आने these दो, lies are coming. ये झूठ आ रहा है। They are coming out of these evil gods. और ये बुरे देवताओं से वो आ रहा है। Evil spirits were behind these evil gods. और दुष्ट आत्माएं ये दुष्ट मूर्तियों के देवताओं के पीछे They है, are trying to control your mind. और वो आपके दिमाग को नियंत्रण में लाना चाहते They हैं। are trying to affect your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन को वो प्रभावित करना चाहते हैं। Now God, Baal, is the God of fertility and prosperity. और ये जो बाल देवता है ये मतलब बांझपन give को birth to children, you know? बच्चों को जन्म देने वाला और Prosperity. समृद्धि को ये दिखाता है। Yes, the word samurdhi is important. समृद्धि, Yes, everybody wants to be prosperous. सब लोग समृद्ध हो जाना चाहते हैं। We are running after it उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं without knowing a God is chasing us there. और हम ये नहीं जान रहे हैं कि वो देवता हमको वहां पर खींच रहा है। Prominent place, first place is given to that. और पहला स्थान, मुख्य स्थान उसको दिया जा रहा है। Even God's promises are used for that purpose. और उस उद्देश्य के लिए परमेश्वर के वचन का भी इस्तेमाल हो रहा है। Be careful. जागृत रहिए। God wants to bless you, no doubt. प्रभु आपको आशीष देना चाहता, कोई संदेह नहीं है। But remember, this God of prosperity is after you. लेकिन आप देखिए ये समृद्धि का जो देवता है वो आपके पीछे लगा है। Better life, एक अच्छा जीवन, better food, एक अच्छा भोजन, better living conditions, एक अच्छा रहने का स्थान, better vehicle. अच्छा गाड़ी, Everything is better. सब अच्छा है। Living for this world. और इस संसार के लिए जी रहे हैं। This is a great temptation to all of us. और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रलोभन है। Young person, you have to decide for your life. जवान, आपके जीवन के लिए आपको निर्णय लेना है। And then you also have this goddess Ashtaroth, और उसके बाद अश्तरोत भी एक देवता है, goddess of sensual love or sexual love. और ये शरीर की अभिलाषाओं को मतलब ये दिखाने वाला ये देवी है। All the perversion that you see in the world today. संसार में जो कुछ आप भ्रष्टता को आज आप देखते हैं, Coming out of this goddess. इस देवी से आता है। The evil spirits that were behind that name. और इस नाम के पीछे जो दुष्टात्माएं हैं, Oh, it is so terrible, the world today. और आज संसार बहुत भयानक है। Young people, you are in the midst of all that. जवानों, आप सब इन सब बातों परिस्थितियों के बीच में हैं। There is so much of perversion when it comes to this pure exercise called this sexual relationship between a man and a wife. और एक पति पत्नी के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप संबंध है, इसके विषय में आज हम देखते हैं कि कितना एक भ्रष्टता समाज में, आज दुनिया में हम देखते हैं। Young people, you must know it. जवान लोग इस बात को आपको देखना है। Minds have been polluted. और दिमाग भ्रष्ट किए गए हैं। Even if you are exposed to such things, even once,
your mind will be polluted. यदि आप इन बातों के ओर यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका जो दिमाग है वो भ्रष्ट हो जाएगा। Thereafter, it is not easy to lead a normal life. और उसके बाद एक सामान्य जीवन जीना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। Do not go there. और वहां पर आप मत जाइए। It is so easy. और ये बहुत आसान है। You can get caught so easily. और आसानी से आप उसके पकड़ में आ जाते It हैं। is in your hand. वो आपके हाथ में It है, is everywhere. वो सब जगहों में है। The evil presentation of something which are so holy in the eyes of God, it is perverted. और परमेश्वर के दृष्टि में जो चीज पवित्र था उसको भ्रष्ट करके वो अब प्रस्तुत किया जा रहा है। This goddess is at work in the world. और ये देवी उस काम के पीछे वो काम में लगा हुआ है संसार में। Through the film industry, और सिनेमा के इंडस्ट्री के द्वारा, through entertainment, मनोरंजन के द्वारा, through social media, और सोशल मीडिया के द्वारा, and through the dark web of the internet. और इंटरनेट के द्वारा ये काम में It है। is coming to you. वो आपके पास आ रहा है। Oh, you must escape that. और इससे आपको बचना है। Don't make your life a useless one before God. और परमेश्वर के सामने आपके जीवन को आप निकम्मा ना करें। Any one of you exposed to such things? यदि आप में से यदि ऐसे कोई है इसके लिए वो लोग इसके जाल में फंस चुके हैं, Repent now. अभी आपको पश्चाताप करना है। Only the Lord can save you. केवल प्रभु ही आपको बचा सकता Only है। the Lord can cleanse you, purge your conscience. और केवल प्रभु ही आपको शुद्ध कर सकता, आपके विवेक को साफ कर No सकता है। amount of preaching will do anything. और कितना भी प्रचार करने से कोई काम नहीं है। You must escape this goddess Ashtaroth. और इस अश्तरोत देवी से आपको बचना है। And dear parents who are present here, few of you. और यहाँ पर माता पिता थोड़े लोग जो यहाँ पर उपस्थित है। The third god, Molech, is such a terrible one. और तीसरा देवता मोलेक बहुत भयानक है। This is the god who demanded sacrifice of children. ये वो देवता है जिसने बच्चों का बलि को चाहता है। This big statue was erected just outside Jerusalem. और ये जो मोलेक है यरूशलेम के बाहर ही उसकी बड़ी मूर्ति खड़ी कराई गई This है। big statue is made of iron. और ये जो मूर्ति है ये लोहे का बनाया गया है। And this statue has two hands. और इस मूर्ति का, इस देवता का दो हाथ है। Like this, stretching outside. बाहर ऐसे वो रहता है। What did they do? वहां पर वो क्या करते थे? They have to heat the hands with fire. और वो आग लगाकर इस लोहे को, हाथ को वो गर्म करते हैं। Unless it is red hot, और वो पूरा लाल हो जाना चाहिए। then they bring babies. उसके बाद वो छोटे बच्चों को लाते हैं। Newborn babies. और अभी नए जन्मे बच्चों को लाते हैं। While it is red hot, it is the babies kept on those hands. और जब वो लोहा लाल हो जाता है, हाथ लाल हो जाते हैं, उस बच्चे को वहां पर रखते हैं। Unimaginable. ये कल्पना से बाहर है, But they did it. लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। People of Israel did it. इजरायली लोगों ने ऐसा किया है। They followed the Canaanite gods. और कनान के देवताओं के पीछे चले गए हैं। Today it is being done among Christians. और आज ये मसीह लोगों के बीच में किया जा रहा है। This goddess, thank you for that picture. It is so evil. You can cancel it now, please. Thank you. वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर मोलेक का Put it off. It is evil. वो बहुत दुष्ट है। You must face this truth. इस सच्चाई को आपको देखना है। Children are being destroyed. बच्चे बर्बाद किए जा रहे हैं। In some cases, parents are pushing them there. और कुछ संदर्भों में माता पिता बच्चों को वहां पर ढकेल रहे Children हैं। are being offered to these gods of this world. और इस संसार के देवताओं को बच्चे अर्पण किए जा रहे हैं। Oh, starting with abortions. और एबॉर्शन से शुरू होता है। Then the child, if the child has some opportunity of being born, यदि ऐसा कोई मौका संदर्भ है कि बच्चा जन्म ले सकता है, after birth they sacrifice the child और बच्चा जन्म लेने के बाद में वो बलि करते हैं। to the opinion of this world, और इस संसार का वो एक समझ लेते हैं। to the fashion of this world, और इस संसार के फैशन के लिए, the competition of this world. इस संसार के साथ जो कंपटीशन उसके लिए। Oh dear parents, you have to take note of this. जो माता पिता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। You and your children, आप और आपके बच्चे, me and my children, the Bible says. मैं और मेरे बच्चे, बाइबल कहता है। You must present yourself with your children before God. आप परमेश्वर को बच्चों के साथ अपने आप को आपको अर्पण करना है। Blessed is that man धन्य है वो पुरुष who will not turn aside towards lies. जो
धन्य वो पुरुष जो इस झूठ की तरफ जो नहीं जाता है। These false gods, ये झूठे जो देवी देवताएं हैं they are operating today. वो आज भी काम में लगे They are हैं, prominent today. आज भी उनका प्रथम बड़ा स्थान है। They are destroying mankind today. आज वो मनुष्यों को वो बर्बाद कर रहा है। It is from such a situation, young man, young woman, that God has delivered you, और ऐसे स्थान से जवान भाई जवान बहन परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, redeemed you by the blood of the Lamb, और मेमने के लहू के द्वारा आपको छुड़ाया है, brought you into a living relationship with Him, और आपको उसके जीवित एक संबंध में वो लेकर आया है with the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के साथ। Maintain that relationship और इस संबंध को आप बनाए रखें at all cost. हर कीमत पर। Worship Him alone. केवल उसकी आराधना करो, Serve Him alone. केवल उसकी सेवा करो, Follow Him alone. सिर्फ उसके पीछे चलो, Live for Him. उसके लिए जियो। That is your challenge. ये आपका चुनौती है। May the Lord help you to do that. ऐसा करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Oh God, help us, हे परमेश्वर हमारी सहायता कर, that we may be delivered from the power of the devil. ताकि शैतान के उस सामर्थ्य से हम छूट जाए, Devil and his angels. और शैतान और उसके जो दूत है। We know thou hast gotten us the victory. और हम जानते हैं कि प्रभु आपने जय पाए हैं। We don't have to turn aside towards the lies. प्रभु जो उस झूठ की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है। But Lord, we don't even realize that these gods are still working among us. लेकिन प्रभु जी इस बात को हम भूल जाते हैं कि ये देवता हैं अभी भी हमारे मध्य में काम कर रहे They हैं। are no longer coming in the form of statues or idols. लेकिन अब वो मूर्तियों के रूप में आप हमारे बीच में नहीं आते हैं। But Lord, the end result will be the same. लेकिन प्रभु जी अंत का जो परिणाम है वो वही होता है। Save us, Lord, from such situation. प्रभु जी ऐसे परिस्थितियों से आप हमको बचाइए। Deliver us and keep us close to Thee. प्रभु जी आप हमें छुड़ाइए और आपके निकटता में आप हमको बनाए We रखिए। pray for all the young ones, young brothers and sisters, प्रभु जी जवान भाइयों के लिए, जवान बहनों के लिए हमारी प्रार्थना the है। future church of the Lord Jesus. भविष्य का प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया They है, may be delivered from the power of the devil. प्रभु जी शैतान के उस सामर्थ्य से वो छुड़ाए जाए। They may have a close relationship with the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक निकटता का संबंध उनका बना रहे, that they may make the Lord Jesus their trust, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना भरोसा कर सके। completely submitting, surrendering under the sovereignty of God. परमेश्वर के सार्वभौमता के नीचे संपूर्ण रीति से अपने आप को भी अर्पण करे। Hear and answer our prayer. हमारी प्रार्थना को सुने और उत्तर Lord, दे। this is our sincere cry. प्रभु जी यह हमारी एक सच्ची पुकार है। Lord, answer our prayer. प्रभु जी आप हमारे प्रार्थना का उत्तर दीजिए। Accept our thanksgiving. हमारे धन्यवाद को आप ग्रहण In the करें। name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we प्रेमी pray. प्रेमी उद्धार करता